السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے صاف صفائی کے حوالے سے کیے گئے قومی سطح کے سوچھ سرویکشن 2020 میں مدھیہ پردیش کے اندور کو پہلا، گجرات کے سورت کو دوسرا اور مہاراشٹر میں نوی ممبئی کو تیسرا مقام دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر برائے شہری امور ہردیپ سنگھ پوری نے سرویکشن 2020 کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں صفائی کے حوالے سے عوام میں شعور کی بیداری میں نمایاں بہتری آئی ہے اور اس کا اثر پورے ملک میں نظر آ رہا ہے۔ صفائی کے سروے میں لگاتار چوتھے سال اندور پہلے نمبر پر رہا ہے۔ گجرات کا صنعتی شہر سورت دوسرے اور نوی ممبئی تیسرے نمبر پر رہا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے پارلیمانی حلقے وارانسی کو دریائے گنگا کے کنارے ایک صاف ستھرا شہر قرار دیا گیا ہے۔ ملک میں وہیں اس بار سب سے گندا شہر بہار کا دارالحکومت پٹنہ ثابت ہوا ہے، جو رینکنگ میں سب سے آخری نمبر پر ہے۔ جل شکتی وزارت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ وزیر کے شیخاوت نریندر مودی حکومت میں چوتھے وزیر ہیں جو اس وبا کی گرفت میں آئے ہیں۔ اس سے قبل وزیر داخلہ امت شاہ، پیٹرولیم وزیر دھرمیندر پردھان اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال اس وائرس سے متاثر پائے گئے تھے۔ کورونا پازیٹیو ہونے کی اطلاع شیخاوت نے خود ٹویٹ کر کے دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بیماری کی کچھ علامات نظر آنے پر میں نے کورونا ٹیسٹ کروایا اور میری رپورٹ مثبت آئی ہے۔ کرناٹک میں 11 اگست کی رات بنگلور کے مختلف علاقوں میں ہوئی گڑبڑ میں ملوث ہونے والی پارٹیوں پر پابندی لگانے کے بارے میں ہنوز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر قانون جے سی مدھوسوامی نے بتایا کہ پولیس اور دیگر محکمہ جات کی جانب سے تشدد میں ملوث ہونے والوں کے تعلق سے رپورٹس کی عدم موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس پر تفصیلی غور و خوض کیا جائے گا۔ ریاستی کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں کسی پارٹی پر پابندی لگانے کا فیصلہ نہیں لیا جا سکا۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا قہر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہندوستان میں کورونا کے 68,898 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 983 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح اپڈیٹ کے مطابق ملک میں اب تک 29,05,824 لوگ اس وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جس میں سے قریب 54,849 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ راحت کی بات یہ ہے کہ 21,58,947 مریض ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ بی جے پی لیڈر اور میسور کے رکن پارلیمنٹ پرتاپ سنہا نے کہا کہ کانگریس ایم ایل اے ضمیر خان کرناٹک کے او اے سی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضمیر خان کے فساد سے متاثرہ علاقوں پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ رکن اسمبلی اکھنڈ سرینواس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بنگلورو گڑبڑ کے سلسلے میں وہ اقلیتوں کا نام نہ لے۔ مغربی بنگال میں 48 گھنٹوں کا مکمل لاک ڈاؤن آج سے شروع ہو گیا۔ 1 جون کو اس لاک ڈاؤن کا پہلا مرحلہ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ 20 اور 21 اگست کو لاک ڈاؤن کے بعد اب دوبارہ 27 اور 31 اگست کو لاک ڈاؤن پر عمل کیا جائے گا۔ اس دوران پولیس کو متعین کرتے ہوئے عوام کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ سوائے اشیاء ضروریہ کے تمام دکانیں بند ہیں۔ عوامی ٹرانسپورٹ کو روک دیا گیا ہے، تاہم میڈیکل شاپس، ملک بوتھ اور پیٹرول پمپ کھلے رکھے گئے ہیں۔ اس دوران پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر 2,687 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں کولکتہ میں 541 افراد شامل ہیں۔ بہار کے سابق چیف منسٹر جتن رام مانجھی کی زیر قیادت ہندوستانی عوامی مورچے نے آج عظیم اتحاد یعنی مہا گٹھ بندھن سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تاہم مستقبل کے بارے میں ابھی تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان دانش رضوان نے بتایا کہ ایچ اے ایم کو عظیم اتحاد میں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پارٹی نے مہا گٹھ بندھن چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہار میں 5 سیاسی پارٹیوں پر مشتمل اتحاد این ڈی اے کے خلاف قائم کیا گیا تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے جہاں ملک کے مختلف علاقوں بشمول دہلی اور گڑگاؤں میں عام زندگی متاثر ہوئی، وہیں اتر پردیش اور بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ اتر پردیش میں 16 اضلاع کے 870 دیہات سیلاب کے پانی میں گر گئے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہونے سے اڑیسہ میں کئی مقامات پر برقی سربراہی منقطع ہو گئی ہے۔ خلیج بنگال میں بننے والے ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے کئی ریاستوں میں بارش ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر میں کئی مقامات پر مٹی کے توڑے گرنے سے 270 کلومیٹر طویل جموں شری نگر قومی شاہراہ بند ہو گئی ہے، جو ملک کو وادی کشمیر سے جوڑنے کا واحد سڑک رابطہ ہے۔ دہلی اور اس کے پڑوسی علاقوں میں جمعرات سے ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر جہاں ٹریفک منجمد ہو گیا، وہیں املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل نے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے اور اسٹریٹجک باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آج ایک تہذیبی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ اور ہندوستان کے سفیر برائے اسرائیل
संजीव शुक्ला ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इस मुआहदे से ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा और दोनों ममालिक की तारीख़ और तहज़ीब से मुतालिक नौजवानों में शऊर बेदार होगा। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ तहज़ीबी मुआहदा हिंदुस्तान के साथ किए जाने वाले सिलसिलेवार मुआहदों का एक हिस्सा है। क़ब्ल हिंदुस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान वाटर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए थे। उन्होंने खुशी के साथ ये बात कही कि हिंदुस्तान की मशहूर फिल्मी सनत बॉलीवुड के साथ मुश्तरका तौर पर फिल्म प्रोडक्शन के लिए वो काम कर रहे हैं। 3 साला मुआहदे के तहत जिन शोबों में ताउन व इश्तराक को फ़रोग़ दिया जाएगा, इनमें तहज़ीबी उमूर का तबादला, आर्ट की महारत, तहज़ीबी सकाफ़त के फ़रोग़ के ताउन की हौसला अफजाई, लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद वगैरह शामिल हैं। मुंबई में मुहर्रम के चांद पर इख्तिलाफात नजर आए। नए इस्लामी साल माह मुहर्रम की चांद की रोयत को लेकर इख्तिलाफात नमूदार हो गए। एक तरफ जहां रोयत हिलाल कमेटी, इमारत शरिया हिंद जामा मस्जिद मुंबई, दरगाह अजमेर शरीफ, बालाल कमेटी, मरकज़ी अहले हदीस रोयत हिलाल कमेटी और अहले तशी ने चांद होने की तस्दीक कर दी। वहीं दूसरी जानिब सुन्नी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया रोयत की शरई तस्दीक ना होने की वजह से जुम्मे को 30 ज़िलहज्जा होगी। इस ज़िमन में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उल उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मकसूद अली खान खादरी ने बताया कि मुंबई उज़्मा में चांद होने की कोई शरई शहादत मौजूद नहीं हुई। अदाकारा कंगना रनावत इन अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गईं जिन्होंने तुर्की के दौरे के बाद आमिर खान पर तंज किया था। एक इंटरव्यू में अदाकारा कंगना रनावत ने दावा किया कि इस दौरे का दोहरा मियार है। इस दावे की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि अदाकार आमिर खान अभी तक भारत में मुबैना अदम रवादारी के बारे में शिकायत करते रहे, लेकिन अभी तक के सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त काउंटी में शामिल तुर्की का दौरा किया है। कंगना रनावत ने आमिर खान की खामोशी पर सवाल उठाए। आमिर खान को अपना दोस्त करार देते हुए अदाकारा कंगना रनावत ने कहा कि वो चाहती हैं कि वो इस मामले पर सफाई दें। पाकिस्तान के वजीर रेल शेख रशीद ने हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इस हमले से मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा। अपने बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के वजीर रेल शेख रशीद ने हिंदुस्तान के खिलाफ एटमी बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। हिंदुस्तान के साथ कशीदगी को लेकर शेख रशीद ने बराह रास्त दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपने हथियार तैयार रखे हैं और अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो रिवायती जंग नहीं होगी, सीधे एटमी हमला होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि सऊदी अरब भी इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबिन गुज़िश्ता हफ्ते तय पाए मुआहदे में शामिल होकर इजराइल के साथ आइंदा मामूल के सिफारती ताल्लुकात और एक नया वसी तर रिश्ता कायम कर लेगा। वाशिंगटन से गुज़िश्ता रोज़ मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह बात गुज़िश्ता रात व्हाइट हाउस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सहाफ़ियों के साथ इस गुफ्तगू में अमेरिकी सदर से पूछा गया था कि आया वो ये तौक़े करते हैं कि अरब दुनिया और खलीजी खित्ते की सबसे बड़ी सियासी ताकत समझा जाने वाला सऊदी अरब आइंदा इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबिन तय पाए मुआहदे में शामिल हो जाएगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, हाँ मैं पुरुम्मीद हूँ। इदारे उमूर हरमैन की जानिब से हरम मक्की के सहन मताफ और दीगर मुकामात पर समाजी फासले के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए सफ़ें बिछा दी गई है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक इदारे उमूर हरमैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की जानिब से जारी अहकामात पर अमल करते हुए मस्जिद हरम में सफ़ें बिछाई गई है। वाज़ह है कि हर साल की तरह इस साल भी नए हिजरी साल के आगाज़ में हरमैन शरीफीन में नई सफ़ें बिछाई जाती है। इस उसूल पर अमल करते हुए पहले मस्जिद नबी में नई सफ़ें बिछाई गई थी, जबकि जुमेरात की सहपहर हरम मक्की में भी नई सफ़ें बिछाने के अमल का आगाज़ किया गया। सफ़ें बिछाने के बाद कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले के उसूल को मद्देनज़र रखा गया है, जिसके तहत एक नमाजी से दूसरे नमाजी के दरमियान कम से कम 2 मीटर का फासला रखते हुए सफ़ों पर निशानात भी वज़ा किए गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटरीट के अहाते में 3 इबादत गाहों के इंहदाम के मसले को पार्लियामेंट और असेंबली में शिद्दत के साथ पेश करने का फैसला किया है। नए सेक्रेटरीट की तामीर के सिलसिले में हुकूमत ने कदीम इमारतों के साथ 2 मसाजिद और एक मंदिर को मुनहदम कर दिया। सेक्रेटरीट के अहाते में दूसरे मुकाम पर इबादत गाहें तामीर करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस पार्टी मौजूदा मुकामात पर इबादत गाहों की तामीर का मुतालबा कर रही है। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहबी जज्बात को टीआरएस हुकूमत ने मजरू करने की कोशिश की है, जिस पर कांग्रेस ने एहतजाजी लाहिया अमल का ऐलान किया है। अब जबकि पार्लियामेंट का सेशन जारी माह के आखिर में शुरू होगा, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी इबादत गाहों के इंतजाम का मसला लोकसभा में उठाएंगे। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने बेरोजगारों व वजीफा याबों के लिए वज़ाइफ पर अमलावरी के लिए हुकूमत को 1 सितंबर तक की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबी वादे के मुताबिक बेरोजगारों व वजीफा याब अफराद को माहाना रकम जारी नहीं की गई तो वो प्रगति भवन के रूबरू भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि 2018 असेंबली इंतखाबात के मौके पर
केसीआर ने बेरोजगार नौजवानों और 57 साल उम्र के अफराद को माहाना 3016 रुपये अलाउंस देने का ऐलान किया था। नौजवानों ने हुकूमत पर भरोसा किया, जिसके नतीजे में केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कहा कि अवाम दोनों वादों की तकमील के सिलसिले में हुकूमत से सवाल करने दबाव बना रहे हैं। केसीआर इंतखाबी वादों को भूल गए हैं। रियासत तेलंगाना में मौसलाधार बारिश से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। एक तरफ मुसलसल बारिश, दूसरी तरफ आबी प्रोजेक्ट्स और तालाबों के लिबरेज होने से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। जारिया साल औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। जून जुलाई में जो बारिश हुई, इससे 208 टीएमसी पानी ज़मीन में जज्ब हुआ है। अगस्त में मजीद 200 टीएमसी पानी जज्ब होने की तौक़्क़े है। रियासत में जून के आखिर और जुलाई में मौसलाधार बारिश हुई, जबकि जुलाई के आखिर तक औसतन 373 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताहम 440 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हुई है। रियासत के 16 अजला में औसत से ज़्यादा और 15 अजला में औसत बारिश हुई है, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन ने एक नई स्टडी पर तशवीश का इजहार किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि हैदराबाद में 6 लाख से ज़्यादा लोग शायद कोरोना से मुतासिर हैं। गवर्नर ने अपने ट्वीट में कहा कि वो मसाइल के तफसीली जायजे पर CCMB की सताइश करती है। उन्होंने CCMB की एक रिपोर्ट भी टैग की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि शहर में 6 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। गवर्नर ने इस रिपोर्ट पर तशवीश जाहिर की है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने तबलीगी जमात के बैरूनी अरकान के खिलाफ अदालतों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चादरघाट, फलकनुमा, हबीबनगर, मीर चौक, बंजारा हिल्स, आसिफ नगर, राम गोपालपेट के तहकीकाती ओहदेदारों ने तबलीगी जमात के 60 से ज़ायद बैरूनी अरकान के खिलाफ चार्जशीट्स मुख्तलिफ कोर्ट्स में दाखिल कर दी है। अरकान के खिलाफ अप्रैल में पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और ताज़ीरात हिंद के दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए थे। पुलिस का इल्ज़ाम है कि बैरूनी अरकान हिंदुस्तान को टूरिस्ट वीज़े पर आए, लेकिन मजहबी इज्तिमा में शिरकत की। हालिया गुज़िश्ता एक हफ्ते की बारिश से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सड़कों पर 5000 से ज़ायद गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे सड़कों पर गाड़ियों का गुजरना दुश्वार हो गया है। सड़कें बह जाने की वजह से छोटे छोटे कंकड़ियां और रेत सड़कों पर आ गई है, जिससे तेज रफ्तार गाड़ियों के अचानक ब्रेक मारने से गाड़ियां फिसल रही है और हादसात भी पेश आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर की अहम सड़कों की तामीरात और सड़कों के निगहदाश्त की जिम्मेदारी खानगी एजेंसियों के हवाले की गई है। इसके बाद यह तस्वुर किया जा रहा था कि अब सड़कों के कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। अगर इत्तेफाक से कोई मसला भी पेश आया तो फौरी हल कर दिया जाएगा, लेकिन हालत पूरी तरह तब्दील है। नाकारा सड़कों का कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। रियासत तेलंगाना में हुकूमत ने डिग्री कॉलेज में दाखिलों के हुसूल के लिए रजिस्ट्रेशन का एलामिया जारी कर दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों का अमल दोस्त वेबसाइट के जरिए मुकम्मल किया जा रहा है और इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन को शुरू कर देने का फैसला किया गया है। इंटरमीडिएट कामयाब और इंटरमीडिएट के मुमासिल तालीम हासिल करने वाले डिग्री में दाखिले के अहल तलबा के लिए दोस्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का अमल 24 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शहरियों की राय में हैदराबाद बेहतरीन शहर है। मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने स्वच्छ महोत्सव का ऐलान किया। मरकज ने पहली मरतबा हिंदुस्तान के मशहूर तरीन 114 शहरों की रेटिंग की है। ग्रेटर हैदराबाद बेहतरीन शहर के जुमरे में शामिल किया गया है। हैदराबाद को शहरियों की राय के जुमरे में बेहतरीन मेगा सिटी अवार्ड मिला है। स्वच्छ भारत अर्बन की जानिब से इस खुसूस में ग्रेटर हैदराबाद को मुबारकबाद पेश की गई है। दूसरी तरफ साफ शहरों की फहरिस्त में शहर हैदराबाद को 23वां मुकाम हासिल हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी और MBT कायद अमजदुल्लाह खान खालिद ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो आलियर इनकाउंटर से मुतालिक कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के अहकाम को रूबामल लाए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2015 के आलियर इनकाउंटर, जिसमें 5 ज़ेर दरियाफ्त कैदियों को हलाक किया गया था, इनके महलूकीन के विरसा को मुआवजा अदा करने का हुकूमत तेलंगाना को हुक्म दिया है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने उम्मीद जाहिर की कि रियासती हुकूमत आलियर इनकाउंटर से मुतालिक कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के अहकाम की तामील करेगी। रियासत तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1967 नए पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आए हैं और 8 अमवात हुई है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। महकमा सेहत के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में पॉजिटिव केसेस की तादाद 99,391 हो गई है, जबकि 737 अमवात हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 473 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं।